Controversy over such statements which have no need in today's political and defense spectrum are now being unnecessarily raised by certain political leaders. Now, right after the Madhya Pradesh's minister Vijay Shah's comments on Colonel Sophia that had created a lot of controversy, now here is the MP Deputy CM Jagdish Devda, who is also in the eye of a political storm. He is quoted controversy with a statement saying that when it comes to the Indian army that is bowing before the Prime Minister, it is bowing at the Prime Minister's feet. Now, these controversial comments were made when the Deputy CM was speaking at a training session for the civil defense volunteers in Jabalpur. And here's what he told the audience. यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। The Congress, meanwhile, was quick to cite the Deputy CM's remark and accused him of insulting the forces. Congress MP Priyanka Gandhi Vadra took to social media to say that the constant insult of army by the BJP leaders is extremely shameful and unfortunate, with MP Congress leaders, including the leader of opposition in the State Assembly, Umang Singhar, has also, and the State Congress Chief Jitu Patwari has also demanded sacking of both the Deputy CM and the State Minister Vijay Shah, as Congress says that if they don't resign, the party will burn their effigies across the state. अब भी अगर कार्रवाई नहीं हुई, जगदीश देवड़ा का इस्तीफा नहीं लिया गया, विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया, तो 100% मेरा आरोप नहीं है, ये तथ्य सत्य है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना का अपमान करने की इनको छूट दे दी है। कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है। हम पूरे प्रदेश में जगदीश देवड़ा के और विजय शाह के पुतले जलाएंगे, विरोध दर्ज कराएंगे और इनके इस्तीफे की मांग करेंगे। जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। Well, under fire from the Congress, the MP Deputy CM, however, issued a clarification. He accused the Congress of distorting his statement and presenting it in a wrong way, where he has said that his entire speech was in the honor of the army and it was taken in a wrong sense by the opposition. बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। ये शब्द मैंने कहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कार्रवाई होना चाहिए। गोविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद, सबसे पहले तो अगर इस तरह के बयान भी जो सामने आते हैं, उनकी आखिरकार जरूरत क्या थी? क्योंकि अगर इस तरह के बयान आते हैं, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और आर्मी और हमारे डिफेंस फोर्सेस को बीच में घिसा, दे ड्रैग दीज आर डिफेंस फोर्सेस, व्हिच इज कंप्लीटली अननेसेसरी एंड अनकॉल्ड फॉर। Yeah, absolutely. Amita, good morning. And nothing is just running good for the Madhya Pradesh government. You know that first the controversy created over the statement of a minister, Vijay Shah. Already Madhya Pradesh government is facing the crisis of giving justifications on his statement. And after that, one more controversy comes out when Deputy CM Jagdish Devda's statement comes out and Congress makes the blame. In fact, that
जो सेना है उसको अपमानित किया जा रहा है, चाहे तो मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो मध्य प्रदेश में। तो अब जो विपक्ष है वो पूरी तरह से हमलावर है और उन्होंने कहा है कि हम पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश में माफ कीजिएगा मंत्री और उप मुख्यमंत्री के पुतले जलाएंगे अगर उनसे इस्तीफे नहीं लिए गए। और आपको पता है कि पहले से ही कोर्ट में केस चल रहा है मंत्री का, और मंत्री को लेकर जो जबलपुर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई वो सबके सामने है। और सुप्रीम कोर्ट जब मंत्री गए हुए हैं तो उनको 19 तारीख का वक्त दिया गया है। तो डेफिनेटली वी आर विटनेसिंग दीज टू controversies. So as far as when it comes to the comments that have now come in from the BJP leadership in Madhya Pradesh, the Congress party says that it will continue to protest and have been demanding their resignations. गोविंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. With that